السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ وَلَئِنْ آتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وما انت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت اهواءهم من بعد ما جاءك من العلم انك اذا لمن الظالمين۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی فہما۔ اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ قد نرى، تحقیق ہم دیکھتے ہیں، تقلب آپ کا اٹھنا، وجہی کا چہرہ، فی السماء آسمان کی طرف، تقلب آپ کا اٹھانا، وجہی کا اپنے چہرے کو، فی السماء آسمان میں، فلنولینک، پس البتہ ہم ضرور پھیر دیں گے آپ کو، آپ کا قبلتن، قبلہ، ترضاہا، جیسا چاہتے ہیں آپ، جیسا آپ کی رضا ہے، جیسا آپ کی خواہش ہے۔ فولی، پس پھیر لیجئے، وجہ کا اپنے چہرے کو، شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف، شطر طرف مسجد الحرام، مسجد حرام، وحیث، اور جہاں کہیں، ما کنتم، ہو تم، فولو، پس پھیر لو، وجوہکم، اپنے چہروں کو، شطرہ، اس کی طرف، یعنی مسجد حرام کی طرف۔ وَإِنَّ الَّذِينَ، اور بے شک جو لوگ، اوتوا الکتاب، دیے گئے کتاب، لَيَعْلَمُونَ، البتہ وہ علم رکھتے ہیں، أَنَّهُ الْحَقُّ، بے شک وہ سچ ہے، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے۔ وَمَا اللَّهُ، اور نہیں اللہ، بِغَافِلٍ، بے خبر، اما، اس چیز سے، یعملون، جو وہ اعمال کرتے ہیں۔ وَلَئِنْ، اور البتہ اگر، أَتَيْتَ الَّذِينَ، لے آئے آپ ان لوگوں کے پاس، اوتوا الکتاب، جو دیے گئے کتاب، بِكُلِّ آیَةٍ، ہر دلیل، ساتھ ہر دلیل کے، ما تبعوا، نہیں وہ پیروی کریں گے، قبلتک، آپ کی قبلہ کی، وما انت، اور نہیں آپ، بتابع، پیروی کرنے والے، قبلتہم، ان کے قبلہ کی، وما بعضهم، اور نہیں بعض ان کے، بتابع، پیروی کرنے والے، قبلتا، قبلہ، بعض، بعض کے، ولئن، اور البتہ اگر، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ، اور البتہ اگر پیروی کی آپ نے، احواءہم، ان کی خواہشات کی،
من بعد اس چیز کے بعد ما جو جاءکا آ گیا آپ کے پاس من العلم علم سے انکا بے شک آپ اذن اسی وقت لمن الظالمین البتہ ظالموں میں سے ہو جائیں گے. جی یہ آج کے سبق کی آیات تھیں دو، اور کل والے سبق کی ہم نے 2 آیتیں پڑھی تھیں، ایک دفعہ دوبارہ سے پڑھ دیتے ہیں. سَيَقُولُ ان قریب وہ کہیں گے سفہاء بے وقوف من الناس لوگوں میں سے ما واللہم کس چیز نے پھیر دیا ان کو ان قبلتہم اللاتی ان کے قبلے سے جو کانو تھے علیہا اس پر. قل کہہ دیجئے للہ اللہ ہی کے لیے ہیں مشرق و مشرق والمغرب اور مغرب. یہدی وہ ہدایت دیتا ہے، وہ توفیق دیتا ہے، من یشاء جس کو چاہتا ہے، الی صراط مستقیم سیدھی راہ کی طرف. وَكَذَلِكَ اور اسی طرح جعلناکم کیا ہم نے تم کو امتاً امت وسطاً وسط لتکونوا تاکہ ہو جاؤ تم شہداء گواہ علی الناس لوگوں پر وَيَكُونَ الرَّسُولُ اور ہوں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیکم تم پر شہیدہ گواہ. وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ اور نہیں کیا ہم نے قبلہ کو التی جو کنتا تھے آپ علیہا اس پر الا مگر لنعلم تاکہ جانے ہم من یتبع الرسول کون پیروی کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ممن ینقلب کون ہے جو پھر جاتا ہے علی عقبیہ اپنی دونوں ایڑیوں پر. وَإِن كَانَتْ اور تحقیق تھی لَكَبِيرَةً البتہ بہت باری الا مگر علی الذین ان لوگوں پر ہدی اللہ جن کو ہدایت دی اللہ نے. وَمَا كَانَ اللَّهُ اور نہیں ہے اللہ لیضیع یہ کہ ضائع کر دے ایمانکم تمہارے ایمان کو. ان اللہ بے شک اللہ بالناس لوگوں کے ساتھ لرؤوف البتہ بہت شفیق رحیم بہت رحم کرنے والا ہے. قد تحقیق نرا ہم دیکھتے ہیں تقلبا آپ کا چہرہ، آپ بار بار اٹھانا آپ کا وجہ کا آپ کا چہرہ فی السمائی آسمان میں یا آسمان کی طرف. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ پس البتہ ضرور ہم پھیر دیں گے آپ کو قبلہ ترضاہا جو پسند کرتے ہیں آپ. فَوَلِّ پس پھیر لیجئے وجہ کا اپنے چہرے کو شطر المسجد الحرام مسجد حرام کی طرف. وَحَيْثُ اور جہاں کہیں ما کنتم ہو تم فَوَلُّوا پس پھیر لو وجوہکم اپنے چہروں کو شطرہو اس کی طرف یعنی مسجد حرام کی طرف. وَإِنَّ الَّذِينَ اور بے شک جو لوگ اوتوا الکتاب دیے گئے کتاب لَيَعْلَمُونَ البتہ وہ جانتے ہیں انہ الحق بے شک وہ سچ ہے من ربہم ان کے رب کی طرف سے. وَمَا اللَّهُ اور نہیں اللہ بغافل بے خبر اما اس چیز کے ساتھ یعملون جو وہ اعمال کرتے ہیں. وَلَئِنْ اور البتہ اگر آتیت الذین لے آئے آپ ان لوگوں کے پاس اوتوا الکتاب جو دیے گئے کتاب بکل آیت ساتھ ہر نشانی کے ما تبعوا نہیں وہ پیروی کریں گے قبلتک آپ کے قبلہ کی. وما انت اور نہیں آپ بتابعین پیروی کرنے والے قبلتہم ان کے قبلہ کی. وما بعضهم اور نہیں بعض ان کے بتابعین پیروی کرنے والے قبلہ بعض کے کی. ولئن اور البتہ اگر ولئن اتبعت اور البتہ اگر پیروی کریں آپ اہواءہم ان کی خواہشات کی من بعد اس چیز کے بعد ما جا کا جو آیا آپ کے پاس من العلم علم سے
इन्ना का बेशक आप इज़न उसी वक्त लमिन ज़ालिमीन अलबत्ता ज़ालिमीन में से हो जाएंगे, जालिमों में से हो जाएंगे। जी ये हमारा आज का और कल का सबक था, जिसको हमने थोड़ा सा दोहरा भी लिया। इसको दोहराने के बाद हम थोड़ी सी तफसीर देखते हैं, उसके बाद फिर हम अपने दूसरे सबक की तरफ जाएंगे। और इंशाल्लाह कल से जो है वो 10 मिनट निकाल के पिछला सबक जो है वो जिस तरह हमारी रूटीन हुआ करती थी, सुनते थे हम, उसी को इंशाल्लाह इसी तरह जारी रखा जाएगा और सुना जाएगा। कद नरा तहकीक हम देखते हैं, तकल्लुबा बार बार उठाना, वजही का आपका चेहरा, फिस्समाई आसमान की तरफ। फी का मतलब आम तौर पे हमने में पढ़ा है, लेकिन चूंकि फिस्समाई इसमें जैसे कि आप समझ सकते हैं कि नमाज पढ़ते हुए चेहरा आसमान में उठाने का मतलब यह है कि आसमान की तरफ देखना। फलनुवल्लियन्नका, बस अलबत्ता जरूर हम फेर देंगे आपका या आपको किबलतन, किबला तरज़ाहा, जिसको पसंद करते हैं आप। यानी हजरत बरा बिन आज़ब रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल मुकद्दस की तरफ मुंह करके 16 या 17 साल, 16 या 17 माह नमाज पढ़ी, और आपको पसंद था ये कि आपका किबला जो है वो बैतुल्लाह हो, यानी मस्जिदुल हराम हो। तो उसी चीज के बारे में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हम आपका बार बार आसमान की तरफ देखना हम देखते हैं, तो अलबत्ता हम जरूर बदल देंगे, फेर देंगे आपके किबला को उसकी तरफ जिसकी तरफ आपकी पसंद है। तो फिर असल हुक्म जो आया वो ये इधर से शुरू हुआ, फवल्ली, बस फेर लीजिए वजह का, अपने चेहरे को, शत्रल मस्जिदिल हराम, मस्जिद हराम की तरफ। ये किबला बदलने का जो है असल हुक्म है। इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं कि कुरान में सबसे पहला नसख यानी तब्दीली बदलने की जो है वो किबला का हुक्म है, किबला के बदलने का हुक्म है। ये कुरान में सबसे पहला जो नसख का हुक्म है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बैतुल्लाह का किबला होना इस कदर पसंद था कि किबला बदलने की उम्मीद में बार बार आसमान की तरफ देखते थे। अच्छा, ये बात भी आपके ज़हन में वाज़ेह रहे कि बैतुल मुक़द्दस शाम में है और ये बैतुल हराम, ये और ये जो मदीना बैतुल मुक़द्दस जो है ये मदीना से शमाल की तरफ है, शाम, और बैतुल्लाह, बैतुल हराम, मस्जिद हराम इसके बिल्कुल मुखालिफ यानी मदीना के जनूब की तरफ बनता है। इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि लोग कुबा में सुबह की नमाज पढ़ रहे थे कि इनके पास एक साहिब आए, उन्होंने कहा आज रात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान उतरा है और आपको काबा की तरफ मुंह करने का हुक्म दिया गया, लिहाजा तुम भी इसकी तरफ मुंह कर लो। इनका रुख शाम की तरफ था तो उन्होंने घूम कर काबे की तरफ मुंह कर लिया, यानी कि बिल्कुल अपोजिट मूव अपना घुमा के उसी वक्त उस हदीस पे अमल करते हुए जो कि उस सहाबी ने सुनाई थी, उन लोगों को अपना मुंह मोड़ लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पहली नमाज पढ़ी थी मस्जिदुल हराम की तरफ, वो असर की नमाज थी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली पढ़ी थी। अब ये अमल जो सहाबाए किराम ने किया, इससे ये साबित होता है कि किस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आ जाती, हदीस रसूल आ जाती, तो किस तरह एक ही बंदे पर इतबार करते हुए, एक ही बंदे पर इतबार करते हुए फौरी उस पर अमल दरामद शुरू कर देते, उसमें जरा भी हीले बहाने ना करते। वहैसु मा कुंतुम, और जहां कहीं भी तुम हो, फवल्लू, बस फेर लो, वुजूहकुम, अपने चेहरों को,
शत्रहू उसकी तरफ, यानी सफर में भी हैं आप, जिस जगह पे भी हैं आप, कश्ती में हैं आप, हालत जंग में हैं आप, या किसी जगह पे भी हैं, किबला से मुंह मोड़ना जो है वो मुस्तस्ना नहीं है। हाँ, किसी वजह से आप, किसी खास वजह, जंग की वजह हो सकती है या कोई स्पेशल वजह हो सकती है, फिर जिधर मुंह करके नमाज पढ़े, नमाज पढ़ सकते हैं। जैसा कि सूरत बकरा की आयत नंबर 115 में भी हम पढ़ चुके हैं, फाइनमा तुवल्लू फसम्मा वजहुल्लाह, तो तुम जिस तरफ रुख करो सो वही अल्लाह का चेहरा है। अलबत्ता सफर में अगर मुमकिन हो तो सवारी का रुख किबला की तरफ करके नफल नमाज शुरू कर ली जाए, इसके बाद सवारी का रुख जिधर भी हो फिर कोई मुजायका नहीं। अनस रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सफर करते और नफल पढ़ने का इरादा करते तो अपनी ऊँटनी का रुख किबला की तरफ कर लेते और तकबीर कहते, फिर सवारी आपका रुख जिधर को भी करती नमाज पढ़ते रहते, नमाज छोड़ते नहीं। वइन्नल्लज़ीना, और बेशक जो लोग ऊतुल किताब, दिए गए किताब, ला यालमूना, अलबत्ता वो जानते हैं, अन्नहु, बेशक वो हक़्क़ुन, सच है, मिन रब्बिहिम, उनके रब की तरफ से। यानी यहूद को अपनी किताबों की पेशन गोई की बिना पर खूब इल्म था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किबला मस्जिद हराम होगा, मगर वो कुफ्र इनाद और हसद की बिना पर इस बात को छुपाते थे। आयशा रजी अल्लाह अन्हा बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये लोग यानी अहले किताब हम पर किसी चीज पर इतना हसद नहीं करते जितना जुमा के दिन इबादत करने पर, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें इसकी हिदायत दी, इसकी तौफीक दी और वो इससे गुमराह हो गए। और इस किबला पर जिसकी अल्लाह ताला ने हमें तौफीक दी, हमें हिदायत दी और वो इससे गुमराह हो गए, और इमाम के पीछे हमारे आमीन कहने पर। यानी हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं कि ये तीन चीजों से बहुत ज्यादा नफरत जो है वो, बहुत ज्यादा हसद जो है वो यहूद अहले किताब मुसलमानों से करते हैं। वमल्लाहु, और नहीं अल्लाह बिगाफिलिन, बेखबर, अम्मा, उस चीज से, यामलून, जो वो अमाल करते हैं। और वो जो भी अपनी हरकतें करते हैं, जो कुछ भी करते हैं, उनकी इन हरकतों से, इन चालाकियों से, इन बातों के छुपाने से अल्लाह ताला बेखबर नहीं है। अल्लाह ताला उनके इन अमाल को खूब अच्छी तरह जानता है और अल्लाह इनका उनसे बदला ले लेगा। वाला इन, और अलबत्ता अगर आतैतल्लज़ीना, ले आए आप उन लोगों के पास, ऊतुल किताब, जो दिए गए किताब, बिकुल्ली आयतिन, साथ हर दलील के, मा तबिऊ, नहीं पैरवी करेंगे वो, किबला तक, आपके किबला की। यानी वो काबा के किबला होने को खूब जानते हैं, मगर इनका अनाद, हसद इस कदर बड़ा हुआ है कि आपकी इस हकानियत पर हर दुनिया भर के दलाइल पेश कर दिए जाएं, वो आपके किबला को तस्लीम नहीं करेंगे। वमा अंता बिताबिन किबलतहुम, और नहीं आप पैरवी करने वाले उनके किबला की, और आप भी वही इलाही के पाबंद होने की वजह से इनके किबला की पैरवी, यानी और आप भी वही इलाही के पाबंद होने की वजह से इनके किबला को इख्तियार नहीं कर सकते। वमा बाजुहुम, और नहीं बाज उनके भी, ताबीन, पैरवी करने वाले, किबला तक, किबला बाजिन, बाज के। और इनके आपस में एक दूसरे के साथ भी हसदो इनाद का हाल जो है वो इस तरह का है कि एक दूसरे के किबला को भी पसंद नहीं करते। यहूद जो है वो बैतुल मुकद्दस का जो सहरा है उसकी तरफ रुख करके इबादत करते, और इसी तरह नसारा जो हैं वो अपना किबला बैतुल मुकद्दस की जो मशरकी जानिब है उसको ठहराते। ये चीज जो है तफसीर कुर्तुबी में इमाम कुर्तुबी ने नोट की है।
वलाइन और अलबत्ता अगर, वलाइन इत्तबाता और अलबत्ता अगर आप पैरवी करें अहवाअहुम उनकी ख्वाहिशात की, मिन बाद इस चीज के बाद, माँ जो जाअका आया आपके पास, मिनल इल्मी इल्म से, यानी कुरान और सुन्नत की पैरवी तो मा जा का मिनल इल्म यानी अल्लाह ताला की तरफ से आने वाले इल्म की पैरवी है। इसके सिवा दीन में जो भी शामिल किया जाएगा वो इंसानी ख्वाहिश होगी, वो चाहे हाँ वो यहूदों नसारा की तरफ से ख्वाहिश है या हिंदुओं सिखों की तरफ से ख्वाहिश है या मुसलमानों के अपने अंदर से ईजाद की हुई ख्वाहिशें हों, ये सब ख्वाहिशों की पैरवी होगी। इसीलिए इस आयत में अल्लाह ताला ने जो है वो मना फरमाया, इस आयत में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन लोगों की ख्वाहिशात की पैरवी करने से मना करके खूब अच्छी तरह मना करने की ताकीद की, और मना करते हुए क्या फरमाया, इन्ना का बेशक आप इज़न उसी वक्त लमिन ज़ालिमीन अलबत्ता ज़ालिमीन में से हो जाएंगे। यानी कि जब जिनको मुखातब किया जा रहा है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनके ऊपर इस्लाम आ रहा है, कुरान नाज़िल हो रहा है, उनको इस तरह तंबीह की गई है, तो किस तरह ये हम मुसलमानों के ऊपर, हम उम्मतियों के ऊपर किस तरह ये लागू होता है कि हम अपनी ख्वाहिशात के ऊपर अमल करने लग जाएं, हम कुरान को छोड़ दें, हम हदीस को छोड़ दें। किस तरह से हम ये 40वें, साते, तीजे, मिलाद, ताजिए, उर्स, क्वाली, खुद साहता वजीफे, किस तरह इन चक्रों में हम पढ़ सकते हैं, किस तरह अपनी ख्वाहिशात में पढ़ सकते हैं। और अगर हम पढ़ जाएंगे तो क्या हम फिर इस चीज से बच जाएंगे, इन्नका इज़न लमिन ज़ालिमीन। ये बहुत फिक्र और गौर करने की चीज है और इसको समझने की जरूरत है। जी, तो हमारा ग्रामर का जो सबक है, हम अपना आज का सबक देखते हैं। कल वाले सबक को थोड़ा सा हम दोहरा लेते हैं, उसके बाद हम आज वाले सबक को देखते हैं। कल हमने इस्तिलाहात देखी थी जिसमें था हरकत, पेश जबर और जेर को हरकत या इराब कहते हैं। अरबी में इनको रफा या जमा, नसब या फतेह, जर या कसरा कहते हैं। रफा या जम्मा जो है ये पेश को कहते हैं, नसब या फतह जो है ये जबर को कहते हैं, जर या कसरा जो है ये जेर को कहते हैं। इसी तरह हमने तनवीन पढ़ा। तनवीन जो है दो पेशों, दो जेरों और दो जबरों का इकट्ठा आने को हम तनवीन कहते हैं, और इसको पढ़ते हुए नून की आवाज पैदा होती है और इसको नूने तनवीन कहा जाता है। सुकून किसी लफ्ज के ऊपर, किसी हर्फ के ऊपर हरकत ना होने को क्या कहते हैं, सुकून कहते हैं। हम आम तौर पे इसको जज़म के नाम से जानते हैं, और इनकी अलामात जो है वो 3 तरह की होती हैं, इससे ज्यादा तरह की भी होती हैं। नहीं भी होगा फिर भी वो सुकून की हालत में होगा, और इसको जज़म कहते हैं। तशदीद, ये जिस तरह से हम 3 उल्टा लेटा हुआ ये शद, इसको तशदीद कहते हैं, और जिस हरफ के ऊपर ये आता है उसको मुशद्दद कहते हैं। और इससे कोई भी हरफ 2 दफा पढ़ा जाता है, जैसे मुहम्मदुन, मोहम्मद के दरमियाने मीम के ऊपर जब शद है तो ये 2 दफा पढ़ा जाता है। आज का हमारा सबक जो है वो मुफरद है, कलमा है। ये मुफरद कलमा है क्या चीज? हमारा टारगेट था, हमने बोला कि हम इस चार्ट को अपना टारगेट बनाएंगे और इसको हम पूरा करेंगे इंशाल्लाह। ये चार्ट जिससे शुरू हो रहा है उसको लफ्ज लिखा है। लफ्ज हर उस चीज को जो हमारे मुंह से निकलती है उसको लफ्ज कहते हैं। लफ्ज का माना होता है फेंकना। हम अपने मुंह से जो कुछ भी निकालते हैं, जो भी फेंकते हैं, उसको क्या बोलते हैं? लफ्ज। लफ्ज 2 तरह के होते हैं। फिर वो निकली हुई चीज बा माना होती है, यानी उसका कोई माना होता है, कोई मौजू होता है। यानी मुंह से कोई लफ्ज निकला है, या तो उसका कोई माना होगा, या दूसरी बात ये होगी कि उसका कोई माना नहीं होगा, वो बेमाना होगा। जब वो बेमाना होगा तो उसको मुहमल बोलेंगे, और जब उसका कोई माना होगा तो उसको मौजू बोलेंगे।
यानी मौजू टॉपिक किसी चीज के मुतल्लक होगा ना। फिर आगे उस बा माना लफज के दो कैटेगरियां, फिर एक कैटेगरी है जी मुफरद और दूसरी कैटेगरी है मुरक्कब। मुफरद जो है इसको कलमा भी कहा जाता है। तो आज का हमारा जो सबक है वो हमारा सबक यही है, मुफरद। तो हम अपना इसको मुफरद देखते हैं। ये किताब वैसे ग्रुप में शेयर भी कर दी गई है, और बहुत जरूरी है सबक को याद करने के लिए कि उसकी रिवीजन की जाए, और जब तक रिवीजन नहीं होती तब तक सही से सबक याद नहीं होता। मुफरद, मुफरद को कलमा भी कहते हैं। कलमा जिस लफज या वर्ड से कोई माना समझ में आए इसे कलमा कहते हैं। कलमा की तीन किस्में होती हैं। पहली किस्म इसम, दूसरी किस्म फेल और तीसरी किस्म हरफ। इसम, इसम नाउन। इसम वो कलमा है जो किसी के नाम या सिफ्त यानी अच्छाई या बुराई को जाहिर करे और अपने माना अजहुद बयान करे। मसलन मुहम्मदुन तारीफ किया गया, अर्जुन जमीन, कमरुन चांद, बाबुन दरवाजा, सादिकुन सच्चा, सालिहुन नेक। हमारे पास वक्त तो है, तो एक ही किस्म पढ़ें या मुफरद को मुकम्मल कर दें। तो अगर किसी की कोई राय हो तो मैसेज कर दें, तब तक मैं इसको दोबारा से पढ़ता हूं। कलमा जिस लफज या वर्ड से कोई माना समझ में आए उसे क्या कहते हैं? कलमा। ये बात ज़हन में बैठा लें, कलमा हर उस लफ्ज को बोला जाएगा जिस लफ्ज का कोई ना कोई माना समझ में आ रहा हो, उसको लफ्ज बोलेंगे, उसको कलमा बोलेंगे। कलमा की फिर तीन किस्में हैं। एक किस्म है इसम, एक किस्म है फेल और एक किस्म है हरफ। इसम नाउन, इसम वो कलमा है जो किसी के नाम या सिफ्त, सिफ्त जो है वो अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी हो सकती है, को जाहिर करे और अपने माना अजहुद बयान करे। मसलन मुहम्मदुन तारीफ किया गया, अर्जुन जमीन, कमरुन चांद, बाबुन दरवाजा, सादिकुन सच्चा, सालिहुन नेक। अगर तो मिसालें साथ साथ याद की जाएं तो ये बहुत अच्छी वोकैबुलरी हमारी तैयार हो जाएगी, हमारी एक अपनी अंदर जहन के अंदर डिक्शनरी महफूज हो जाएगी। पर ये बहुत अच्छी चीज है। और जोन सा भी टॉपिक आए उसके साथ फौरन उसकी मिसाल को याद कर लें, ठीक है, ताकि वो ज़हन नशीन भी हो जाए। ठीक है जी, राय देने का बहुत शुक्रिया, और इंशाल्लाह जरूर, बिल्कुल बिल्कुल जी, इसी तरह यह दौड़ नहीं लगेगी। तो हम एक एक करके थोड़ा थोड़ा एक करके हम उसको समझ के करेंगे। और आम ये कोई नई चीजें नहीं है हमारे सामने, ये वही चीजें हैं जिनको हम सारी जिंदगी पढ़ते आए। हमने स्कूलों कॉलेजों के अंदर 10-10 साल, 12-12, 14-14, 16-16 साल लगा के हमने ये चीजें पढ़ी हुई हैं। सिर्फ इनको रिवाइज करना है, याद दहानी करनी है, इनको इम्प्लीमेंट करना है। आज तक इम्प्लीमेंट न किया, इनको इम्प्लीमेंट करना है, असल मकसद यही है। ठीक है जी। अच्छा हाँ, वो दरमियान में भूल गया, एक कल सवाल था, उसका जो है वो जवाब दे देते हैं, उसके बाद फिर हम अपना। ये जी हमारे आज के सबक की जो पहली आयत थी, इसमें ये था मस्जिदिल हराम, शत्रल मस्जिदिल हराम, मस्जिद हराम है। हम बैतुल्लाह को मस्जिद हराम कहते हैं, मस्जिद हराम बोला जाता है। तो फिर हराम करदा चीजें जो हैं, जैसे मसलन खंजीर, सुअर हराम है, तो उनके लिए फिर लफ्ज हराम क्यों बोला जाता है? जैसे कि हम देखते हैं, इन्नमा हर्रमा अलैकुमुल मैतता वद्दमा वलहमल खिंजीर, यानी कि हम हराम करदा चीजों को, मुर्दार, खून और
खंजीर, इनको भी हम फिर हराम क्यों बोलते हैं? ये बात समझ लें, ज़हन में बिठा लें। जो मस्जिद हराम है ना, उसको इसलिए मस्जिद हराम बोलते हैं कि उसके पास, उसके इर्द गिर्द शिकार करना मना है, शिकार करना हराम है, लड़ाई करना हराम है, एक दूसरे को तकलीफ देना हराम है। और इन चीजों की वजह से इनको हुर्मत, ये चीजें उधर हराम की गई हैं, इन हराम करदा चीजों की वजह से, इन मना करदा चीजों की वजह से मस्जिद हराम बोला गया। मस्जिद हराम के पास, हरम के पास आका ने बोला थोड़े अरसे के लिए मुझे सिर्फ लड़ाई की इजाजत दी गई, उसके अलावा अदरवाइज उसके पास लड़ाई करना हराम है, झगड़ना हराम है, शिकार करना हराम है, एक दूसरे को तान तशनी करना हराम है। इस वजह से इसको मस्जिद हराम बोला जाता है। और दूसरी तरफ वो जो हराम करदा चीजें हैं, नजस चीजें हैं, पालीद चीजें हैं, जिनको खंजीर है, सुअर है, पलीत है, उनको पलीत होने की वजह से, नजस होने की वजह से हराम किया गया है, उनको उस वजह से मना किया गया। यानी उनको खाना मना है, उनको खाना हराम है, और इधर लड़ाई झगड़ा करना मना है, इधर जो है वो दंगा फसाद करना मना है, ठीक है। और इस चीज की वजह से इसको मस्जिद हराम बोला जाता है। उम्मीद है शायद मैं सही समझा सका हूं या नहीं, बात की समझ आ गई होगी, सवाल जो है वो क्लियर हो गया होगा। दूसरा जो आज का कोई सवाल हो, ठीक है जी, फिर हम अपनी क्लास, हाँ एक सवाल जो है जन्नत हमारे साथ होती हैं, वो सुनती हैं सबक, उनकी तरफ से कल था। उनका सवाल ये था, सयकूल सुफहाउ मिनन नासी मा वल्लाहुम अन किबलतिहिम अल्लती कानू अलैहा। उनका सवाल ये था जी जन्नत का, कि असल बेवकूफ तो फिर वही है ना जो कि अल्लाह का कहना नहीं मानते। ये जो दूसरे बेवकूफ है ना, जो कभी कोई हरकत कर रहे होते हैं, कभी कोई हरकत कर रहे होते हैं, जिनकी हरकत हमें समझ नहीं आ रही होती, वो नकली बेवकूफ होते हैं। तो ये बिल्कुल सही बात उन्होंने की थी जी, बिल्कुल असल बेवकूफ वो ही है जो कि दीन इस्लाम के ऊपर नहीं चलता, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की पैरवी, अहकामात की पैरवी नहीं करता, वो असल बेवकूफ है। दूसरे जो है उनके लिए तो हॉस्पिटल मौजूद है, उनका तो इलाज मुमकिन है, इलाज होने के बाद वो ठीक हो सकते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।